earliest and taking all the measures to manage sepsis effectively is the real challenge. We all are facing these challenges in day-to-day practice, and all ICUs, this is the universal phenomenon. So I welcome you all in this program. Thank you for coming. We have Dr. Vikram Singh as first session because Professor Malviya has requested to shift his session in afternoon. He is having some issues with flight, so he will reach in afternoon session. So we will start Dr. Vikram session first. So welcome you all of this program. Apart from the public domain, as you all know about the crisis, ongoing crisis of misuse of antibiotics and the measures taken. The ex-assistant professor of the Department of Medicine, ex-assistant professor Srinagar Agarwal, and ex-fellow rheumatology Central Hospital, Singapore. And his area of interest are rheumatology, diabetes, and infectious disease. And he has more than 20 international publications and awarded various global research scholarships by American Diabetes Association. Dr. Vikram Singh. Again, there is a certain issues because there have been a few studies in which 40% of the critically ill patient develop sepsis after API. So, whether sepsis is causing API or API is causing, but more or less we can say that it is a sepsis in which almost 1/3 of the patient develop API. Now, what is pathophysiology of this API? The serum creatinine, because we know what is the baseline of the patient, that is the first problem. Then, when the patient is in sepsis, there is a blood flow that decreases from the muscles to the vital areas. So, the rise in the serum creatinine is hampered. Then we give fluids that concentrate the dilutional. Then the blood definition increases urine output because most of the times these start diuretics. So actually the definition is a clinical one, and we only diagnose patient with AKI as a clinical diagnosis. These are the limitations of the patients we have already discussed.
Now I would like to request our VC ma'am to felicitate our activity sir. Academics, Dr. Dev Prakash, the organizing secretary, all other esteemed faculty members from all the three institutes I can see, from AJU, from RLL IMS and from SGIMS, and all other staff of the Georges Medical University and the participants, both online and who are physically present here. First of all, a very warm welcome on the behalf of the Georges Medical University to this update on sepsis, which I think is very, very important for any patient. At the outset, I would like to congratulate Dr. Dev Prakash and his team for organizing this update. I would like to begin by answering Dr. Rajiv Prasad on his 3 dreams. That your first dream was of pulmonary medicine and a DM in pulmonary medicine. So it's there in 2 institutes, and we do hope that it will also get started in RLL IMS, because the new hospital, the 750 new bed hospital that we have proposed in RLL IMS, we have made sure that 1 floor is for respiratory medicine, which is a mandate for MBBS, and apart from that there is a floor. डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करने वाले को बधाई देती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि सेप्सिस सीरियस हो सकता है, सेप्सिस से जाने जा सकती हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लिटरेचर है जो ये कहता है कि अस्पताल में जो डेथ्स होती हैं, जितने मरीज हॉस्पिटल एडमिशन के समय के बाद मरते हैं, उनमें से 1/3 बिकॉज ऑफ सेप्सिस होती हैं। और ये हिंदुस्तान जैसे कंट्री का डेटा नहीं है, ये उन कंट्रीज़ का डेटा है जो बहुत ही एडवांस माने जाते हैं, जैसे अमेरिका या यूके का डेटा ये बता रही हूँ आपको। तो सेप्सिस से डेथ हर जगह होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सेप्सिस जैसे कंडीशन से पेशेंट कितने ठीक हो पाएंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कब पेशेंट सीवियर हो जाएगा, कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये सब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई बार हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले सेप्सिस की पहचान करें। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसको प्रिवेंट करें, सेप्सिस होने नहीं दें। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं जो डॉक्टर्स को पता हो। लक्षण तो कोई भी इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं वही सेप्सिस के लक्षण हैं, इन्फेक्शन से इतर नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन सेप्सिस में चेंज हो सकता है। तो जो भी इन्फेक्शन, जैसे बुखार आना है, कमजोरी लगना है, हाथ पैर ठंडे हो जाना है, ब्लड काउंट्स बढ़ जाना है, बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम सेप्सिस से रिलेट कर सकते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉब्लम है, ये अचानक नहीं पैदा होता, ना ये किसी पेशेंट से रिलेटेड। हमको इन्फेक्शन कहाँ से होता है? हमारे एनवायरनमेंट से होता है। अगर हम जहाँ भर्ती हैं वहाँ जो ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं वही तो हमें इन्फेक्शन करेंगे, या हम जहाँ रहते हैं हमारे घर से जो हम इन्फेक्शन लेके आए हैं वो। तो ये ऑर्गेनिजम्स ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, आदमी या पेशेंट ड्रग रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं? जब हम एंटीबायोटिक्स को मिसयूज करते हैं। मिसयूज हम कैसे कहते हैं? बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स जो है उनकी बड़ी खासियत होती है, उनको अपना सर्वाइवल चाहिए, उनको इसमें जिंदा रहना है। जब हम उनको एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश करते हैं तो वो अपना स्वरूप बदलना शुरू करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। एंटीबायोटिक्स से उनकी डेथ होती है, तो वो अपनी डेथ को एस्केप करने के लिए वो अपना स्वरूप बदलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जो नए फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया निकल के आ जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि उनके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करते। जब एंटीबायोटिक ही हमारा मेन सोर्स ऑफ ड्रग्स है, जो हमारा
सबसे इम्पोर्टेंट शस्त्र है टू फाइट सेप्सिस इज एंटीबैक्टीरियल्स। तो जब एंटीबैक्टीरियल्स ही काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उनसे फाइट करेंगे? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म अब्यूज जो चल रहा है उसको रोकें, ताकि जो बैक्टीरिया हमारे आसपास रहें वो सेंसिटिव बैक्टीरिया रहें, ताकि अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो तो सेंसिटिव बैक्टीरिया से हो और उसको हम फाइट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया है जिससे हमको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप फाइट करते रहिए, आपके पास कोई दवा ही नहीं है जिससे आप उससे लड़ पाएंगे। क्या सिचुएशन हो गई? वो सिचुएशन हो गई जब हमको एंटीबायोटिक्स थे ही नहीं, लाइक तकरीबन 100 साल पुरानी सिचुएशन में हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज ना करें, ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करें, क्योंकि अगर हम आज नहीं चेते तो फिर हम परेशान हैं, पूरी मानव जाति। सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष डिपार्टमेंट से भी रिटायर हुआ हूँ। जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है ये। एक्चुअली आयुष मतलब आयुर्वेद का मतलब ये है कि मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस रोग मोक्षण चाहिए, जरा व्याध नाशनम तक ऐसा नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना वो केवल दुनिया में अगर किसी चिकित्सा पद्धति का है तो वो केवल आयुर्वेद में अगर सेप्सिस में भी यही चीज है कि स्वस्थ को अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन अगर हमने कर दिया तो सेप्सिस से हम लाखों लोगों करोड़ों लोग बचा सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला तो प्रिवेंशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हम दैनिक दिनचर्या बताते हैं कैसे आसपास जड़ी बूटियों से कैसे लोग हमारे जो है उससे स्वस्थ बने रहें। जब हमारा तो ये देश है कि बीमार ही न पड़ने दिया, तो हम लाखों अरबों करोड़ों रुपए का जो है राजस्व भी हम देश के लिए बचा सकते हैं। उस मिशन में मैं अभी आयुष डिपार्टमेंट से भी रिटायर हुआ हूँ। गोमती नगर विरामखंड टीम में जो है ये पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट किया जहाँ पे कोई भी आके निःशुल्क से राय भी दे सकता है, और वहाँ पे ये सब सारी चीजें हम करते हैं कि कैसे हम रोगों से कैसे हम बचाएं। कोई भी चाहे जैसा भी रोग है वो सब हम इससे बचा सकते हैं। सर सबसे बड़ी चीज जो भी सीरियस भी है उसमें भी हमारा आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। कई ऐसी औषधियां हैं, जैसे हम औषधियां बताने जो आसपास ही उपलब्ध है, बिना पैसे की है। गिलोय है, नीम है, मंजिष्ठा है, सोंठ है और एलोवेरा है। ये कई ऐसी औषधियां हैं। बाकी तो हमसे कोई कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर भी बिल्कुल वो है, हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं बता देता हूँ 9935377666। कोई भी इस पे सलाह लेके हमसे निःशुल्क राय ले सकता है। क्रॉनिक से क्रॉनिक कोई भी रोग है वो हम इसके माध्यम से चाहते हैं कि वो लोग हमारे पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें। क्योंकि मेरी बस एक यही तमन्ना है कि देश में पूरी दुनिया को हानिकारक दवाओं से बचा के उनको आयुर्वेद और पंचकर्म से पूरा स्वस्थ बनाए रखेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ। पंचकर्म शोधन हमारी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया है, तो उसमें सारे पंचकर्म की वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये सारी प्रक्रियाएं मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से वो पूरी बॉडी रेजोनेट हो जाती है। जो रोग आने वाले होते हैं वो भी नहीं आते। ये इम्यूनिटी उसकी रोग मेन चीज यही कि सेप्सिस में भी यही है कि अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, अगर हम क्षमता को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली हम उसको रोक सकते हैं हम सेप्सिस होने से। अगर सेप्सिस हो भी गया है तो आपने जो प्रश्न किया है कि सीरियस केस अगर है तो उसको भी हम उसकी सीवियरिटी को कम करके फिर उसके बाद हमारी एलोपैथ की जो मेडिसिन है उनसे हम बचाते हैं। हम लोग एक पार्ट है एलोपैथ आयुर्वेद, सब लोग हम लोग को मिल के बस हमें क्या है, हमारा मेन ये है कि पेशेंट को हमको बचाना है। तो उस जो बिल्कुल बहुत तेजी होती है उस तेजी को हम कम कर देंगे। बीमारी की जो तीव्रता है उसको अगर हम कम कर देंगे, उन आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ऐसी जिनके माध्यम से पूरी बॉडी का स्नेहन स्वेदन करते हैं, पूरी बॉडी का मसाज करते हैं। मैं रिलैक्सेशन थेरेपी बनाई जिसके लिए स्टेट और नेशनल अवार्ड मिला है। वो रिलैक्सेशन थेरेपी पूरी बॉडी को अगर कर दिया तो जर्जर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। उस कमजोर को लाइव करने के लिए हम बॉडी का मसाज करते हैं। जैसे नवजात शिशु होता है उसको मसाज और दूध पे ही जिंदा रखते हैं, तो मसाज एक ऐसी चीज है जो बॉडी के 1000 पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो उससे जो है हम उनको पूरी बॉडी में एनर्जी दे सकते हैं। उस एनर्जी से
जो है वो आदमी अपनी शक्ति उसके जब आ जाएगी तो इन दवाओं को भी लेने की शक्ति आ जाएगी। और बाकी आयुर्वेद की खान पान है, मसाले हैं, भोजन है, उनसे हम जो सीवियरिटी को दूर करके इनको स्वस्थता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड सेप्सिस डे 13 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। जिस तरह की थ्रेट आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं, इस सेप्सिस से जो प्रभावित हैं लोग, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में प्रभावित हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मौत हो रही हैं हर वर्ष। देश की अगर बात करें तो 30 लाख मौतें हर वर्ष हो रही हैं। इतने ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और घंटों में हम लोग गिनते हैं गोल्डन आवर्स। जैसे जैसे घंटा निकलता है मौत की तरफ मरीज आगे बढ़ता है। ऐसे में जितने भी इशू आप देख रहे हैं देश पर, उसमें आधे से ज़्यादा रोगी सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करना माने उसको पहचानना और प्रॉम्प्टली उसका ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट जो हमारे पास उपलब्ध हैं, एंटीबायोटिक्स कोर्स करना जुडिशियस तरीके से इन गोल्डन आवर्स, ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती सभी के लिए। इसलिए मैं जब भी ये दिवस आता है इस पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, सभी विशेषज्ञों को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं और एक मैसेज को आगे रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स ही हमारे हथियार हैं। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग लगातार हो रहा है। आप देखिए, जो अपने आप लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं वो भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं। जो हमारे झोला छाप या क्वैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत महंगी और हाई एंड एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दुरुपयोग को कहीं न कहीं रोका जाना चाहिए। यदि हम भविष्य में ऐसी स्थिति देखते हैं कि जहाँ पे रेजिस्टेंस को काबू किया जा सके, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस में जो देख रहे हैं वो एक बड़ी थ्रेट है आने वाले समय की। यदि हम लोग इस दुरुपयोग को नहीं रोक पाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग एक प्री एंटीबायोटिक एरा की तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए एंटीबायोटिक शायद नहीं। इसलिए इस दुरुपयोग को रोकना है, प्रिवेंशन की तरफ हम लोगों को, स्वच्छता की तरफ आगे सब करना है। देखिए, जिस तरह की स्थितियाँ आप देख रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है लगातार, चाहे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, लिवर किडनी की बीमारियाँ, कैंसर की बीमारी, हमारी प्रेग्नेंट माताएं बहनाएं, छोटे बच्चे 5 साल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, इस सभी में इम्यूनिटी की कहीं न कहीं कमी देख रहे हैं।
है।